Good morning class 8. Welcome to the English language session. Today we will do interchange of sentences. Open your language books, page number 7. Interchange of sentences. What do you mean by interchange of sentences? Children, in our previous sessions, we have seen 5 kinds of sentences. So, what were they? They were assertive sentence, yes, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and optative sentence. Okay? So changing the sentence into from one form to another is called interchange of sentences. Clear? Okay. And in assertive sentences, we have seen 2 kinds of assertive sentences. What were they? Affirmative sentence and negative sentence. ठीक है ना? Okay. So, now into your books. From affirmative into negative. There are few rules for changing them from affirmative sentence to negative sentence. What is an affirmative sentence? These are simple sentences, assertive sentences or declarative sentences. These are simple statements with a full stop at their ends. ठीक है? Yes type of sentences जिसमें no या not नहीं होता है. Yes type of sentences are called affirmative sentences and no type of sentences are called negative sentences. ठीक है? So rule 1. If a sentence has any verb is, am, are, was, were, has, have, had or any modals will, shall, must, can, could, etc. we simply put not just after it to change an affirmative sentence into negative. अगर हमें affirmative sentence को negative sentence में बदलना है तो हम देखते हैं अगर वो simple sentence है जिसमें कि helping verbs is, am, are, was, were है ना, या modals has, have, had, will, shall, can, could, will, would ये सब है तो simply उसके बाद क्या लग जाता है? No या not लग जाता है, not लग जाता है. For example, he will laugh at her. तो negative होगा तो क्या होगा? He will not laugh at her. will modal के बाद क्या लग गया? will modal के बाद लग गया not. तो he will not laugh at her. ये negative sentence हो गया. ठीक है? They were late for school. This is the affirmative sentence. वो स्कूल के लिए लेट थे. ठीक है? तो अब इसका नेगेटिव बनेगा. नेगेटिव मतलब उसमें नॉट होगा. तो दे वर नॉट लेट फॉर स्कूल. क्लियर? नाउ रूल नंबर 2. इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? यस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस. ठीक है? Imperative sentences take do not or don't before the verb or in the beginning to become negative. जैसे कि please come here. ये क्या है? Imperative sentence, request है. तो please do not come here. Or you can write children please don't come here. ठीक है? ये इसका negative हो गया. तो imperative sentences में do not या don't before the verb लग जाता है. ठीक है? Before the verb लग जाता है. Stand here, don't stand here. Sit down, don't sit down. Go there, don't go there. ठीक है? So these are some of the examples of imperative sentence and how will we change them to negative sentences. ठीक है? Rule number 3. Some words are changed into their negative form to make a sentence negative. Few words are always और even is changed to never. Always या even है अगर सेंटेंस में तो उसको हम क्या कर देते हैं? never में चेंज कर देते हैं. every या some है अगर सेंटेंस में तो उसको हम चेंज कर देते हैं no में. always even never में चेंज होता है और every some no में चेंज होता है. either और है अगर तो वो neither nor बन जाता है. ठीक है? either or है तो neither nor बन जाता है. Clear? For example, someone spoiled my notebook. तो some है तो some का क्या बन जाएगा? no बन जाएगा. No one spoiled my notebook. ठीक है?
some can be changed into not any, but in past indefinite sentence did not will be used after the subject and convert second form of the verb into first form. पास्ट इनडेफिनिट सेंटेंस जो होते हैं, मतलब पास्ट इनडेफिनिट सेंटेंस में डिड नॉट यूज होता है ना. सम नॉट एनी में चेंज हो सकता है, लेकिन पास्ट इनडेफिनिट टेंस जहाँ होता है वहाँ पे डिड नॉट यूज होता है. अब पास्ट इनडेफिनिट टेंस कहाँ है, चेक करते हैं. ही एट समथिंग, ही एट समथिंग. तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, ये बन गया ही डिड नॉट ईट समथिंग. क्यों, एट था, तो एट क्या है, एट पास्ट टेंस में है, ईट नहीं लिखा है, वहाँ एट लिखा है, ATE एट, खाया था, उसने कुछ खाया था. तो उस कंडीशन में जब पास्ट टेंस है, जहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट टेंस है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस का हम डिड नॉट निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं, यानी एट का ईट बन गया. तो डिड नॉट ईट एनीथिंग, समथिंग का एनीथिंग हो गया, मतलब सम का एनी हो गया. ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, ही एट समथिंग, ही डिड नॉट ईट एनीथिंग. ओके. In present indefinite tense, does not will be used after the subject if the subject is singular and the third person of personal pronoun, and remove ses from the verb. Do not will be used after the subject if plural I and you. अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो बच्चों ध्यान से सुनो. सारिका, अभी आपने पढ़ा पास्ट इनडेफिनिट टेंस के बारे में, है ना, कि अगर उसमें वर्ब पास्ट टेंस के फॉर्म में है तो हम डिड नॉट लगा देते हैं और सिंपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे कि हमने यूज किया ही एट समथिंग, तो ही डिड नॉट ईट समथिंग, है ना. अभी क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस अगर डज नॉट के फॉर्म में है, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, तो वहाँ डज नॉट यूज होता है. जैसे सारिका ईट्स पिज़्ज़ा, सारिका ईट्स पिज़्ज़ा, तो ईट्स है ना, एस लगा है, एस लगा है, तो एस का क्या होगा, डज नॉट हो जाएगा. जब हम नेगेटिव बनाएंगे एस का डज हो जाएगा, और हमें नेगेटिव बनाना है तो वहाँ नॉट लग जाएगा. तो सारिका डज नॉट ईट पिज़्ज़ा, अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे. सारिका डज नॉट ईट पिज़्ज़ा, अब ईट्स नहीं लगेगा, ईट लगेगा. सारिका डज नॉट ईट्स पिज़्ज़ा, ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया. अब ये क्या है, दिस इज द फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. ठीक, थर्ड पर्सन के लिए सारिका, यहाँ नाम लिखा है ना, तो थर्ड पर्सन हुआ. आई यू फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, ये थर्ड पर्सन में है. अब इसी तरह होता है आई गो टू स्कूल. सपोज एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई गो टू स्कूल, सपोज यहाँ आई होता तो आई गो टू स्कूल, तो क्या हो जाता, आई के साथ हमें डू नॉट लगाना पड़ेगा. आई डू नॉट गो टू स्कूल. ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे तो डज लगेगा नहीं. क्यों, क्योंकि यहाँ आई गोज टू स्कूल नहीं होता, आई गो टू स्कूल होता है. ठीक है, तो डू नॉट गो टू स्कूल. ठीक है, क्लियर. अभी ही वॉक्स स्लोली, इसका क्या होगा, ही वॉक्स स्लोली, एस लगा हुआ है तो क्या होगा, डज आ जाएगा. वर्ब में एस लगा है, क्या हो गया, डज आ जाएगा. तो ही डज, अब नेगेटिव है, डज नॉट, ही डज नॉट वॉक स्लोली, ही डज नॉट वॉक स्लोली, ही वॉक्स स्लोली का हो जाएगा ही डज नॉट वॉक स्लोली. क्लियर. अब नेक्स्ट देखते हैं. इफ द सेंटेंस हैव ऑलवेज, it will be changed into never and structure of the sentence will remain the same. For example, अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेंटेंस में always है, अगर सेंटेंस में always है तो वो चेंज हो जाता है never में. वो किस में चेंज हो जाता है, never में. ठीक है, जैसे कि for example, she always writes by left hand, she always writes by left hand. अब इसको हम नेगेटिव में करेंगे तो always चेंज हो जाएगा never में, always चेंज हो जाएगा never में. she never writes by left hand, she never, देखिए आपके बुक में write लिखा है, उसको writes कर लीजिए. ठीक है, she never writes by left hand, she never writes by, always का never हो गया, बस इतना करना है. अगर always है सेंटेंस में तो वो never बन जाता है. ठीक है, always है तो never बन जाता है. अभी from negative into affirmative, अब इसका उल्टा कर रहे हैं. अभी हम लोग क्या कर रहे थे,
अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी कि यस सेंटेंस को नो सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम नेगेटिव इनटू अफर्मेटिव, यानी कि नो सेंटेंस को यस सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। रूल 1, remove does not from the sentence and add ses to the verb to make the sentence affirmative. Children, आप ध्यान दीजिए, हम जो करते आए हैं जस्ट उसका रिवर्स करेंगे। ठीक है। अभी जो हमने रूल्स पढ़े हैं, 3 to 4 रूल्स हमने जो पढ़े, उसका यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा, एकदम रिवर्स हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर ही डज नॉट राइट अ लेटर है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमें इसको अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि यस सेंटेंस में बदलना है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट हट जाएगा। यस, डज नॉट हट जाएगा और बन जाएगा डज है ना, तो राइट में एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स अ लेटर। क्या हो गया, ही राइट्स अ लेटर। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, क्लियर है ना। रिमूव डू नॉट, रूल नंबर 2, रिमूव डू नॉट फ्रॉम द सेंटेंसेस टू मेक द सेंटेंसेस अफर्मेटिव। ठीक है। जैसे दे डू नॉट कंप्लेन, अब अगर डू नॉट आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना होता है, डू नॉट है तो डू नॉट को आप हटा दीजिए, दे कंप्लेन, हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इट्स इजी नो, यस इट्स वेरी इजी। रूल 3, remove did not from the sentences and change verb into second form to make sentence affirmative. ठीक है। अब अगर did not लगा है, देखो बच्चों, अब अगर did not लगा है, I did not write a letter, तो क्या होगा, did not हटेगा और जो verb है उसका past tense यूज हो जाएगा, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगा। ठीक है। I wrote a letter, I wrote a letter, I did not write a letter, I wrote a letter, WROTE, write, wrote, written। ठीक है, तो wrote, WROTE, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, I wrote a letter। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या हुई, यहाँ पे ध्यान रखने वाली हुई डू, डज, डिड, 3 फॉर्म हुए। ठीक है। अगर डज नॉट है नेगेटिव सेंटेंस में तो डज नॉट हटता है और जो भी उसका वर्ब होता है उसमें एस या ई एस लग जाता है। जैसे कि ही डज नॉट वॉक फास्ट, तो ही वॉक्स फास्ट, डज नॉट हट गया और वॉक था, वॉक का वॉक्स हो गया अफर्मेटिव में। ठीक है, तो ही वॉक्स फास्ट, समझ में आया। अगर डू नॉट है तो कुछ भी नहीं करना है, डू नॉट हटाइए और वैसे लिख लीजिए, जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल था, दे डू नॉट कंप्लेन, हाँ तो दे कंप्लेन। दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। डू नॉट में वर्ब में कोई चेंज नहीं आता, वर्ब को उसी फॉर्म में लिख दिया जाता है। क्लियर हुआ। ठीक है। अब अगर डिड नॉट है तो डिड नॉट हट जाएगा और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि I did not write a letter, I wrote a letter, I did not go to school, I did not go to school, did not हट गया। तो go का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, go, went, gone, सेकेंड फॉर्म क्या है, went है, तो went लगेगा, I went to school। समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ। नाउ रूल नंबर 4, remove not / no just after the helping auxiliary modal verbs from the sentences. Let us not work hard, let us work hard, let us not work hard का क्या बना, let us work hard। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, वर्क नॉट या नो जो है सेंटेंस में उसको हटा दिया, उसको हटा दिया। अब imperative sentences, रूल नंबर 5, in imperative sentences remove don't या do not from the sentence. In imperative sentences remove don't / do not from the sentence. You know ना children, do not को abbreviated short form में लिखते हैं तो हम don't लिखते हैं, apostrophe लगा के don't लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से did not को लिखते हैं तो didn't लिखते हैं,
और डज नॉट को लिखते हैं तो डजंट लिखते हैं, ठीक है। डोंट गो देयर, ये नेगेटिव फॉर्म है, इसमें नॉट है। डोंट गो देयर तो क्या करेंगे, डोंट हटा देंगे, गो देयर, ठीक है। डोंट हटा दिए, अफर्मेटिव बन गया, गो देयर यानी कि यस टाइप ऑफ सेंटेंस बन गया। क्लियर? नेवर, नो आर चेंज्ड इनटू ऑलवेज स्लैश सम। नेवर ऑलवेज में चेंज हो जाता है और नो सम में चेंज हो जाता है। नेवर ऑलवेज में और नो सम में चेंज हो जाता है। जैसे कि समवन वॉज इन द क्लास, समवन वॉज इन द क्लास, तो नो वन वॉज इन द क्लास, नो वन वॉज इन द क्लास नेगेटिव हुआ तो क्या हम लिख देंगे, नो का सम बन जाएगा, तो समवन वॉज इन द क्लास, ठीक है। नो वन वॉज इन द क्लास, नो का सम हो गया तो समवन वॉज इन द क्लास। नेवर गो फॉर वॉक, नेवर गो फॉर वॉक, तो नेवर का क्या होगा, ऑलवेज हो जाएगा, तो ऑलवेज गो फॉर वॉक, always go for walk. Clear? Now the third part, from affirmative into interrogative sentences, from affirmative into interrogative sentences. Interrogative sentences question sentences, तो yes sentences को question sentences में कैसे बदलते हैं ये हमने देखना है। Rule 1, put helping verb is, am, are, was, were, has, have, had, modals like will, shall, will, would, shall, should, must, do, does, did just before the subject and put question mark at the end of the subject. Children, सेंटेंस बनाने के कुछ रूल्स थे। स्टार्टिंग में हम कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल लेटर, और एंड में हमारा कोई ना कोई मार्क लगता है, आइदर फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो क्या लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंटेरोगेशन मार्क लगेगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स देखें। ही इज अ स्लिम बॉय, ठीक, दिस इज एन अफर्मेटिव यस टाइप ऑफ सेंटेंस, इसमें नो नहीं है तो अफर्मेटिव हुआ। ही इज अ स्लिम बॉय, तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन, इज ही अ स्लिम बॉय। जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। ही इज अ स्लिम बॉय, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इज पहले आ जाएगा, इज ही अ स्लिम बॉय क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, he has completed the work, इसमें क्या है, इसमें क्या है, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, has है, हेल्पिंग वर्ब has है, has पहले आ जाएगा। has he completed the work question mark, has he completed the work question mark, ठीक है। note, in past indefinite tense use did before the subject and change second form of the verb into the first form and put a question mark at the end of the sentence. past indefinite tense में फिर वही did वाला है, महिमा वर्कड हार्ड, ठीक है, इसमें ईडी लगा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें क्या करना होगा, जब पास्ट टेंस में होगा तो पहले हम डिड लगा देते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी देखो हेल्पिंग वर्ब ऐसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑटोमेटिकली ईडी लगा है तो हम क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे, यहाँ पे हमारा डिड मॉडल लग जाएगा। डिड महिमा वर्क हार्ड, ये डिड महिमा वर्क हार्ड होगा बेटा, यहाँ पे वर्कड हार्ड नहीं होगा चिल्ड्रन, इट शुड बी वर्क हार्ड। डिड महिमा वर्क हार्ड, ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा, सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा। डिड महिमा वर्क हार्ड, आप इसको करेक्शन कर लीजिए अपनी बुक्स में, डिड महिमा वर्क हार्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ in present indefinite tense use does before the singular subjects excluding I, use do before the plural subjects including you and I and put question mark at the end of the sentence. प्रेजेंट indefinite tense, अभी तक आपने देखा पास्ट indefinite tense, अब बता रही हूँ मैं प्रेजेंट indefinite tense का, ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है, he works very hard, s लगा है, अगर s लगा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो आपको क्या लगेगा, डज लग जाता है, जहाँ पे एस ई एस लगा होता है वहाँ पहले क्या लग जाता है, डज लग जाता है, और फिर वहाँ से एस हट जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। डज ही वर्क वेरी हार्ड, डज ही वर्क वेरी हार्ड, एस हट गया, देखो ध्यान दो, वर्क्स का वर्क हो गया, ठीक है, वर्क्स का वर्क हो गया, ठीक, ये बहुत ज़रूरी है।
आप वर्क्स नहीं लिख सकते। जैसे ऊपर आपने करेक्शन किया ना, वर्कड का वर्कड प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट हो गया था ना, तो उसको वर्क किया आपने, वाई? बिकॉज डिड लगा दिया है आपने पहले, ठीक है। डज ही वर्क वेरी हार्ड, सो दिस क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस, द रूल्स विल बी ऑपोजिट। अगर आपको इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस से यस सेंटेंसेस बनाने हैं, तो उसके रूल्स जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकेट कर जाएंगे, दे विल बी ऑपोजिट। जैसे कि डज शी सिंग वेल, डज लगा है बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से क्या होगा। डज शी सिंग वेल, डज शी सिंग वेल, दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये नेगेटिव प्रिंट हुआ है, यहाँ पे लिखिए आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चन पूछ रहा है, ये दिस इज अ मिस प्रिंट। डज शी सिंग वेल, शी सिंग्स वेल, ठीक है, एस लग जाएगा ना, डज हटेगा तो वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस। तो सिंग में ईएस नहीं लगता ना, सिंग में एस लगता है। शी सिंग्स वेल। सो स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। हमने 3 तरह का वो पढ़ा, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, एंड अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव, एंड रेसिप्रोकल ऑल्सो, इंटेरोगेटिव टू अफर्मेटिव। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए, ठीक है। इसमें इंपरेटिव सेंटेंसेस भी कवर हो गए ना। तो चिल्ड्रन, नाउ यू हैव टू रीड ऑल दिस अगेन, एक बार अपने आप से रीड करेंगे, सब समझ में आ चुका है, सबको क्लियर हो गया है ना, एंड यू विल डू द एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक्सरसाइजेस विल बी देयर, आंसर्स विल बी देयर ऑन द PDF, लेकिन आप एक्सरसाइजेस को एक बार खुद ज़रूर करेंगे और फिर PDF से चेक करेंगे, खुद करने से अच्छे से समझ में आ जाता है। थैंक यू।